Hi guys, this is Abhishek and with me is Dhruv and we are the Knights of Reason. So welcome for our third episode. Today we're going to mix things up a little bit. So today instead of talking about the various topics such as the Age of Enlightenment and the Golden Age of Islam that we have discussed so far, today we will be talking about a specific individual, one of the most famous of all time, and his name is Albert Einstein. So Dhruv, over to you. Yeah, so maybe we can discuss a little bit about Albert Einstein, who he was, what he did, and why is he so famous. So instead of me starting about who Albert Einstein was, because the history is most of your domain, so maybe you can start a little bit. कौन था Albert Einstein? Who was he? Yeah. So today, as I said, we're going to mix things up. तो आज not only in English, we will also talk in Hindi. जैसे हम normally बात करते हैं, like colloquial discussions, try to expand our listening base. So okay, so like as Dhruv said, Albert Einstein, हम सब ने इसका नाम सुना है. कौन था Albert Einstein? He was a German physicist. अब मैं इसको बोल रहा हूँ German, but actually his nationality is something that again is very very disputed. Initially he was पैदा वो जर्मनी में हुआ था, आजकल का present day Germany, in a city called Ulm. उसके बाद उसके पेरेंट्स म्यूनिक चले गए थे, कुछ टाइम ये इटली में रहा था, देन स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की थी और अल्टीमेटली उसकी चला गया था यूएस और उसकी डेथ हुई थी अमेरिका में. एट दैट टाइम ही वाज कॉल्ड एन अमेरिकन सिटीजन. तो इसकी नेशनैलिटी इज समथिंग दैट वी कैन से ही बिलोंग टू द होल वर्ल्ड. ये किसी एक देश का नहीं था. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ आवर जनरेशन एंड ही बिलोंग टू द होल वर्ल्ड. So today we're going to discuss some of questions about him, his personal life, his science and so on. So Dhruv, let's start with you since you are a resident physicist here. So why exactly was Einstein so famous? What is relativity and why is it so popular? So Einstein was famous for many things. And one of the main reasons why he was so famous was he actually kind of redefined how we define time. समय किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, समय किस तरह से चलता है, उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस थी वो आइंस्टाइन ने हमको बहुत समझने में मदद की थी. आइंस्टाइन से पहले हमारे पास समय की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन थी कि टाइम लीनियर होता है, और लीनियर इन द सेंस टाइम फिक्स्ड होता है. तो जो हमारा स्पेस है और जो हमारा टाइम है ये फिक्स्ड एंटिटीज़ है. और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था गैलीलियो के टाइम से. उसके बाद न्यूटन ने भी इसको इसी तरह से डिफाइन किया था कि स्पेस की डायमेंशंस क्या है, एक्स वाई जी 3 डायमेंशन में चलता है, और टाइम एक एक्सटर्नल डायमेंशन है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है. और चेंज क्या होती है? चेंज होती है स्पीड. कोई तेज़ चल सकता है, कोई धीरे चल सकता है. यहाँ तक बहुत अच्छा था. क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ज़बरदस्त जोर था. एवरीथिंग वॉज हंकी डोरी, एवरीथिंग वॉज गुड. People were really getting results from classical mechanics because it was able to explain so many things, how the world works. तब आते हैं आइंस्टाइन. अब आइंस्टाइन का कैरेक्टर is something which is interesting. आइंस्टाइन एक विजुअल जीनियस था. That means he was not very good with mathematics per se. गणित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. बट जो उसकी कैपेबिलिटीज़ उसकी विजुअल आर्ट में. So he was more of, I would say he was more of an artistic physicist rather than a mathematical genius. ज़्यादातर जो geniuses होते हैं, रामानुजन जैसे genius या जॉन नैश या रिचर्ड फाइनमैन, ये सारे के सारे geniuses, they were mathematical geniuses. इनकी mathematical equations were what gave them the right to be called geniuses. इसने डिफाइन किया टाइम को. जब तक उससे पहले जैसे मैंने बताया टाइम सारा लीनियर चल रहा था, एवरीथिंग वाज लीनियर, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड. आइंस्टाइन एक दिन आइंस्टाइन वाज अ क्लर्क in a patent office. What he used to do was he used to correct the patents that were there. और ये जो प्री एग्जिस्टिंग पैटेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था. तो इट्स फनी कि आइंस्टाइन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता था. हिज फादर रोट मैनी लेटर्स टू मैनी यूनिवर्सिटीज़ और किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है. इवन हिज प्रोफेसर्स कॉल्ड हिम अ लेजी डॉग. तो ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर एज अ फिजिसिस्ट. बट आइंस्टाइन का जो डेस्क था, आइंस्टाइन के डेस्क में एक छोटा सा ड्रॉर था विच ही कॉल्ड फिजिक्स डिपार्टमेंट. तो वो उसका पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट एक ड्रॉर में था इन विच देयर वर मैनी फिजिक्स पेपर्स ऑफ दैट टाइम. एंड ही वाज प्रीटी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ न्यूटन एंड लाइबनिट्ज एंड मैक्सवेल. तो देयर वाज अ डे व्हेन ही वाज जस्ट सिटिंग ऑन हिज डेस्क एंड ही गॉट एन आइडिया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टाइम. 1905 में अपना पहला पेपर पब्लिश करता है आइंस्टाइन ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट इट वाज कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स. ये पेपर
was the foundation of what became a new era of physics. जब टाइम की डेफिनेशन एक चेंज हुई, जब टाइम एक नई डेफिनेशन के साथ बाहर उभरा, जिसमें हमको पता चला कि टाइम इज नॉट समथिंग विच वी कैन डिफाइन जस्ट बाय अ सिंगल वर्ड विच गोज लीनियर. टाइम चेंजेस according to the laws of physics. If so, speed of light के ऊपर, because he was working with light, उसके ज़्यादातर experiments थे वो thought experiments थे. So he found out that there were two geniuses before him who gave kind of a definition of how the world works. One was Maxwell, and one was Newton. और इनमें से किसी एक की definition of time is wrong. So he just tweaked a little bit of Newton's work. और जब न्यूटन का work he finally corrected, then we got to get a time which was not linear. So depending on the frame of reference कि where is Abhishek and where am I, हमको एक time की नई definition मिलती है. That's why he was so popular. Yeah. So you see, ध्रुव ने सिर्फ 4 मिनट में पूरी की पूरी relativity explain कर दी. तो अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं जो ये पढ़ रहे हैं, तो you know this is what you have to, इसको याद करो और इसको लिखो लंबे लंबे करके, जैसे हम अपने एग्जाम्स में लिखते थे. Yeah. आइंस्टाइन की एक खासियत, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि ही यूज्ड ओनली सिंपल algebra to write his first paper of special theory of relativity. उसको 10 साल लग गए to get from special theory of relativity to general theory of relativity. 1915 में 1915 में जाके उसने general theory of relativity का पेपर कंप्लीट किया था, और उसके लिए उसको कैलकुलस की ज़रूरत पड़ी, which was very hard for him to get right, क्योंकि like I said he was more of a visual genius. A general theory of relativity changed how we see the world. उसमें space time curvatures, black holes की definitions, Stephen Hawking का जितना भी काम है is based on its general theory of relativity. So this is one very important point. Yeah, तो ध्रुव ने अभी मेंशन किया कि was a visual genius. अब वो visual genius क्यों था, ये this I can tell you. क्योंकि एक्चुअली जब आइंस्टाइन की डेथ हुई थी तो इसके ब्रेन को साइंटिस्ट जो भी उसके पास था उसने बॉडी से निकाल लिया था इसकी, ताकि उसके बाद में डाइसेक्शन की जाए, उसकी स्टडी की जाए. इनफैक्ट ये उसकी फैमिली से परमिशन लिए बिना किया गया था, और जब उसकी फैमिली को पता चला तो उन पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर था कि दे हैड टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई हमने उसको ज़बरदस्ती दे दिया है रिसर्च करने के लिए, जबकि था नहीं. तो एनीवे जब साइंटिस्ट ने इसके ब्रेन की डाइसेक्शन की स्टडी की तो उनको पता ये चला कि इसके एक ब्रेन में हमारे पार्ट होता है कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम, बिल्कुल हमारे सेंटर में होता है दिमाग के. ये हमारे दिमाग के जो दो हिस्से होते हैं, जब सबको पता है लाइक लेफ्ट एंड राइट, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और इससे बहुत सारी नर्व्स और लाइनें, हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, जाती हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारे ब्रेन को कि हम किस तरह अपने एक्शंस करते हैं. तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसकी जो लाइंस जाती थी विच कनेक्टेड इट टू 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स और स्पेरेशियल लोब. ये तीनों बहुत थिक थी, मच थिकर देन द एवरेज ह्यूमन ब्रेन. तो इससे हुआ ये था कि आइंस्टाइन कुड, जैसे ध्रुव ने कहा, ही कुड विजुअलाइज थिंग्स वेरी वेरी क्विकली. उसका दिमाग कुड विजुअलाइज स्टफ जो हम लोग नहीं विजुअलाइज कर सकते. वो इक्वेशंस को लिटरली देख सकता था कि वो आर दे एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, जिसकी वजह से वो इतना जीनियस था. अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि एक नॉर्मल इंसान भी अपना ये कॉर्पस कोलोसम और जो 3 मैंने बताया उससे लाइंस जाती हैं उनको थिक कर सकता है. कैसे? वो अपना उल्टा हाथ यूज करो. फॉर एग्जांपल अगर तुम राइट हैंडेड हो तो ब्रश लेफ्ट हाथ से करो, खाना लेफ्ट हाथ से खाओ, अपने उल्टे हाथ को यूज करो, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इनफैक्ट इट इज इंटरेस्टिंग कि आइंस्टाइन वायलिन बजाता था. He was a very avid violin player. तुम अगर अब म्यूजिक बजाओगे तो उससे तुम्हारे दिमाग के सारे सेंटर्स आर मोर एक्टिवेटेड. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आइंस्टाइन्स ब्रेन कि वो क्यों इतनी इजीली विजुअलाइज कर सकता था और हम जैसा एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं कर पाते, हमारे को क्यों उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो करने के लिए. तो अब ध्रुव इजीली एक्सप्लेन टू अस इन वेरी सिंपल टर्म्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिलेटिविटी. अब आइंस्टाइन का लेकिन जब मैं नाम सुनता हूँ सबसे उसकी एक ही फेमस इक्वेशन याद आती है, E is equal to mc square. So now back to Dhruv to again explain in simple terms what is E is equal to mc square. So E equals to mc square is a relative term, which means that it's a relation between energy and mass technically. अच्छा, इसका जो fun fact है वो ये है कि E equals to mc square never appeared in Einstein's work. उसके जो special theory of relativity 1905 का जो पेपर था उसमें स्पेशली एक कोई स्पेशल इक्वेशन नहीं थी, कोई मैथमेटिक्स नहीं था. लाइक आई एक्सप्लेन कि उसने सिर्फ अलजेब्रा से डिफाइन किया था उस पेपर को. देयर वाज नो कैलकुलस इन दैट.
Equal to mc square is just a result of putting his special theory of relativity into the pre-existing equations, जिससे एनर्जी और मास का रिलेशन पता चलता है. ये एनर्जी और मास, that means every mass which we have can be translated into energy depending on how we use the speed of light in the equation. So suppose if you want to convert a particular mass into energy, you have to multiply it by speed of light, which is like 300 million meter per second, which is super fast. It's the fastest thing ever. Equal to mc square is a very widely used equation. बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फिजिक्स में. It's one of the core foundation. हर इंजीनियर को या हर साइंटिस्ट को जो फिजिक्स में who is working, this is one of the first equations he learn. और इसका जो मेन इम्पैक्ट है इसके एप्लीकेशन एटॉमिक बॉम्ब्स में भी हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन बिग बैंग थ्योरी में भी हैं. और बिग बैंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, इवन क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हद तक इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर अप्लाइज. तो द मोस्ट फेमस, अच्छा, आइंस्टाइन, चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन की एक जो स्टोरी है उसके अंदर चार्ली चैपलिन को आइंस्टाइन कहता है, इट्स सो फनी दैट यू नो मोस्ट पीपल डोंट इवन अटर अ वर्ड एंड मोस्ट पीपल आर लाइक इन ऑ ऑफ यू. तो उसमें चार्ली चैपलिन रिप्लाइज टू आइंस्टाइन, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट इट्स समथिंग लाइक आई हैव हर्ड. तो इस पे चार्ली चैपलिन tells Einstein that even your work is more amazing because whatever you say people don't understand and they still are in awe of you. So equal to mc square is something which is extremely simple to actually understand because there are very very few terms in this. So speed of light है, mass है और energy है. So it's very easy to get it. But just general theory of relativity, because it's a much wider applied term, so it's harder to grasp. अच्छा अभिषेक, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेके कि आइंस्टाइन वॉन अ नोबेल प्राइज इन 1921, और वो नोबेल प्राइज इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, जबकि जो द फाउंडेशंस ऑफ द फिजिक्स वर लेड बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अदर देन क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन विच लेटर केम एज स्ट्रिंग थ्योरी, विच इज ट्राइंग टू गेट बोथ क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनटू वन पैन. तो ऐसा क्या था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए तो नोबेल प्राइज मिला नहीं, और अगर जो नोबेल प्राइज मिला वो किस चीज़ के लिए मिला? मे बी यू कैन एक्सप्लेन अ बिट. या तो आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज फाइनली मिला था, इट वाज फॉर समथिंग कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एसेंशियली इज कि लाइक अगर तुम किसी पे, इफ यू हैव अ पार्टिकल, अगर उस पे हम मारे एन एक्स-रे, तो सम एनर्जी विल बी एमिटेड फ्रॉम दैट. तो इलेक्ट्रॉन उससे जो निकलेंगे, लाइक दिस इज बेसिक साइंस, आई एम श्योर वी हैव ऑल रेड इट, कि अगर उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो एक स्पेसिफिक स्पीड से निकलेंगे, एक स्पेसिफिक उसके कर निकलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एसेंशियली दिस, ऑफ कोर्स इसके यू कैन गो इनटू लॉट मोर डिटेल, बट उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए अगेन देन यू हैव टू बी अ पीएचडी इन फिजिक्स, व्हिच आई एम नॉट. तो ध्रुव का सेकंड क्वेश्चन जो था कि उसको क्यों नहीं मिला जनरल रिलेटिविटी के लिए, दिस अगेन इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. जैसे ध्रुव ने कहा था कि जनरल रिलेटिविटी वो चेंज द फेस ऑफ फिजिक्स एट दैट टाइम. जितने भी न्यूटोनियन लॉज को हम मानते आ रहे थे, आई वोंट से चेंज द न्यूटोनियन लॉज, बट जितने भी उस टाइम हम क्लासिकल फिजिक्स को मानते थे, दिस वाज ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी. तो ऑब्वियसली जिन भी फिजिसिस्ट एकेडमी, अब एज मैं एक पीएचडी हूँ, ध्रुव भी पीएचडी हुआ है, हम आपको बता सकते हैं कि जितनी पॉलिटिक्स अगर आपको लगता है कि हमारी पार्लियामेंट में होती है या आपके ऑफिस में होती है, उतनी पॉलिटिक्स एकेडेमिया में भी होती है. एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये सालों से 100 साल पहले भी ऐसे ही था. तो उस टाइम के जो फिजिसिस्ट थे, दे डिड नॉट वांट टू बिलीव इन दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ जनरल रिलेटिविटी, क्योंकि उससे उनका काम खराब होता, उनकी फंडिंग खराब होती, उनकी रेपुटेशन खराब होती. दिस वाज वन रीजन. सेकंड रीजन वाज कि जनरल रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए the idea that Einstein has, the experiment was कि एक solar eclipse या lunar eclipse होने वाला था. Their idea was that they had to take a photo of that from a very specific spot on Earth जो अफ्रीका में पड़ता था. अब ये टाइम चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, between 1914 to 1918. अब उस टाइम, as we all know, Germany and England were on opposite sides. अब Einstein, though he had renounced his German citizenship or he was living in neutral Switzerland, सब उसको शक की निगाह से देखते थे because he was by birth a German. तो और सिमिलरली इसका जो कोलैबोरेटर था, फोटोग्राफर, वो था ब्रिटिश. अब एक ब्रिटिशर को अफ्रीका जाने के लिए उस टाइम पे प्लेन नहीं थे, तो उसको पूरा यूरोप क्रॉस करके जाना पड़ता, स्टीमर्स लेके जाता या बाय लैंड जाता, एंड आइदर वे उसको जर्मन टेरिटरी से निकलना पड़ता. तो इट वाज लॉजिस्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे उसका अफ्रीका पहुंचना, बट ही वाज समहाउ स्टिल एबल टू डू इट. और उसने वो फोटो ली थी, वो आज भी फोटो बहुत फेमस है. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो कि जनरल रिलेटिविटी एक्लिप्स फोटो ऑफ आइंस्टाइन, यू विल फाइंड द फोटो.
बट वही देयर वर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से इसको रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला, बट ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, इसमें एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग है और विच शुड बी एडेड, आइंस्टाइन ने कोई न्यूटन के लॉज को रिजेक्ट नहीं कर दिया था। न्यूटन के जो लॉज थे वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल थे, एक पर्टिकुलर स्पीड्स पे, पर्टिकुलर मैसेस पे, पर्टिकुलर वेट्स पे, वो दे आर ऑल एप्लीकेबल। हमारी जो जनरल मैकेनिक्स है इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन न्यूटन्स लॉ। यू कैनॉट ऑब्जर्व स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी in common senses like you and me, जैसे ये the objects which are around us, you cannot observe because the mass is not enough to bend light or things like those. आइंस्टाइन ने सिर्फ एक एडिशनल ट्वीकिंग की थी उसके लॉज में which were applicable on the at speeds of light, let's say, or speeds closer to light. So this is one very important thing. People in general people about science, what they think is that most of the science is it breaks the old science and brings a new science, but that's not true. Science is incremental. ये अपने फाउंडेशंस के ऊपर एक नई फाउंडेशन बनती है, उसके ऊपर एक नई फाउंडेशन बनती है, इसके ऊपर नई। देयर आर टाइम्स व्हेन द ओल्ड थीसिस आर कंप्लीटली फॉल्सिफाइड। तो हम ऐसा नहीं कह सकते अगर आज हमारे पास इवोल्यूशन है एंड इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, और आज हमारे पास रिलेटिविटी है इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, तो कल को वो टूट जाएगा। ऐसा टूटता नहीं है। वो मोस्ट ऑफ दीज scientific facts are applicable in a particular zone. So this is something which I wanted to figure out. Yeah, और एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात जो ध्रुव ने कही, just building upon that, I mean I'm sure जैसे बिग बैंग थ्योरी है, the TV show, it is very popular, आप सब लोग देखते होंगे। उसमें एक एपिसोड में लेट दिस से शेल्डन हैज दिस आइडिया कि मे बी पुराने आइडिया से ही which can be proven now, and where he mentions a very good point which is true. हिग्स बोसॉन पार्टिकल का नाम हम सबने सुना होगा, Sun super collider में they found. This was actually proposed around 50 years ago, but उस time क्योंकि they had no means to build the super collider, it could not be proven, or the idea was rejected. But 50 years later it was proven. Yeah. So Dhruv is absolutely right कि science step by step बनती है। कोई भी idea can never be the absolute brilliant idea, and it can never be totally rejected. It will only be built upon in the future. आइंस्टाइन के आइडियाज़ को प्रूव करने के लिए हमको 100 साल लग गए। जस्ट रिसेंटली वी गॉट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम लाइगो। और and one of the very fascinating things and why I love science and natural sciences is जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स की पहली डिटेक्शन हुई थी बाय लाइगो, all like 19,000 telescopes were all pointed at the same space. पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, डजंट मैटर कहाँ से, वो अफगानिस्तान से है, वो श्रीलंका से है, वो अफ्रीका से है, वो अर्जेंटीना से है, ऑल ऑफ दीज साइंटिस्ट यूज देयर टेलीस्कोप पॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और हर कोई एक अलग अलग किस्म का डाटा कलेक्ट कर रहा है। somebody is collecting maybe gamma radiation signatures, somebody is capturing infrared signatures, and this is what I like about science is unlike other fields, and I'm not downgrading other fields, science hamesha it works the best if it's in coordination with each other and we get the best results. CERN का experiment $1 billion का project हर साल लगता है CERN में। How fascinating it would be अगर पूरी की पूरी all the countries, कितनी 204 203 I forgot, तो जितनी भी countries 200 how many 208 oh my god, yeah, रोज बढ़ रही है, it's fine. तो जितनी भी countries हैं, if they all bring their resources together towards a single goal, and I think science is one thing where people are doing that. जहाँ पे लोग they become closer rather than going apart. जो एक scientist होगा who is in USA will have the same convictions for science. I probably like the most probable explanation for each one to get on the same experimental result is this: we are going for the same aim, to find the truth. Yeah. And in fact it is said now कि maybe in the future or even in the present the scientists are the true rock stars, और इनकी personalities also are like this. I mean we only focus on the science, but अगर हम आइंस्टाइन की personal life को देखें, he had a very very interesting personal life. अब उसकी nationalities के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। Another interesting fact about him, he was a serial adulterer, like he had many sexual relationships. In fact when he was engaged to, जब इसके फादर ने इसको ज्यूरिक भेजा था पढ़ने के लिए, जब म्यूनिक गए थे, he was living in as a PG paying guest, वहाँ पे जो ओनर की लड़की थी was engaged to that,
When he was engaged to that, जब ये पढ़ने जाता था ETH Zurich में, he met his future wife and he fell in love with her. And then they had a child out of wedlock, which some say it was later aborted, some say it was stillborn, some say they gave it up for adoption, but whatever. उसके साथ इसने शादी कर ली. उसका नाम था मिलेवा मैरिज. And in fact, I would strongly suggest that you guys look her up because she was also a brilliant mathematician in her own right. And उसने काफ़ी आइंस्टाइन की हेल्प की थी in his early work. When he was married to Mileva marriage, जिसके साथ इसके 2 बच्चे थे, he fell in love, now wait for it, with his own cousin. आइंस्टाइन की जो फर्स्ट कजन थी एल्सा नाम की, he fell in love with her and then he divorced Mileva marriage to marry her. So अब ये चीज़ है 100 साल पहले की 1919. Imagine if this happened today, there would be a lot of hoopla. और इनफैक्ट वो उसकी कजन थी दोनों साइड से, उसकी मदर की साइड से भी और उसकी फादर की साइड से भी. और when he was married, despite the fact he loved her very much, he again had lot of affairs. In fact, Einstein was very, very famous for his, very wild sex life. Not only that, his religious views were also very interesting. Though Einstein was born in a Jewish family, but he was raised in Germany, which is a Catholic country. अपने आप को ना Catholic Christian मानता था ना Jew मानता था. He considered himself agnostic. Agnostic means somebody जो मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, बट उसके बारे में हम कभी समझ नहीं पाएंगे या जान नहीं पाएंगे, तो इट इज़ यूजलेस उसके बारे में ध्यान देना. He believed कि praying is worthless, for example, क्योंकि वो सोचता था कि भगवान will never be interested in helping इतने billions में से एक person को. So he was a person who was interesting in many aspects. And जैसे ध्रुव ने कहा कि science, if collaborate, we will get to know more about these scientists. And some of them, like Newton, was another very, very interesting character. Nikola Tesla was perhaps the most interesting character that I've come across. So yeah, it is true कि maybe scientists are the rock stars of not only the past, in the present and the future, but also the past, if we just want to learn about them. I believe the popular culture which we have made the wrong people rock stars. यहाँ पे definition of rock star is very different from, because I think it takes a certain, and I'm not criticizing the general audience or general public, but it takes a certain level of mental sophistication to actually understand what these guys did for you. हमको I still remember हम जब स्कूल में होते थे, and when there were 3 laws of motion from Newton, हम जब उनको पढ़ रहे होते थे या thermodynamics जब पढ़ते थे, तो हम कहते थे काश न्यूटन उस टाइम पे मर जाता तो हमको ये ना करना पड़ता, या काश वो ये सब डिस्कवर ना करता. What they don't understand is कि how key these laws and these mechanisms which he understood are for them to actually be able to enjoy all the good things which they have in their lives. Or this is why it takes, like I say, it takes a certain level of mental sophistication to understand the concepts. We are all sitting on the shoulders of giants, and these giants were sitting on the shoulders of giants before them, and the chain has been going forever. Yeah, so this is something which takes mental sophistication, but then again, person like Elvis or John Lennon, they look better on a poster rather than Newton, so we cannot blame the public too much for that also. So so this has been our discussion today. We don't want to go too long, so this was our discussion about Albert Einstein. I hope you all guys liked it. अगर आप चाहो कि तो if you want to give us suggestions कि अगली बार हम किसके बारे में बात करें, which topics you would like us to discuss, please let us know. We are on Facebook, we are on Instagram, or if you can comment on our YouTube channel, or you can reach us out. Dhruv can give you now the contact details where to exactly contact us. You can find all the contact details in the descriptions below. You can also drop us an email on knightsofreasonindia@gmail.com, and you can also use the comment box for any suggestions or any comments. Feel free to like, feel free to dislike. It's a free country. Use it as you may. Thank you for having us. Yeah. Bye bye guys. Stay happy, stay safe, and see you next time.